Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan से शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट वीक में देखा था श्लोक का नंबर 56 से देखा था हमने 59 तक देखा था हम लोगों ने। आज हम लोग श्लोक का नंबर 60 के आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे कनिपुनुषक धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणे त्रिभुवन मन्य शरण्याकर श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिका वंदे रूप सनातन श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विदो वेदान्तकृत वेदविदुर्चाहम्। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, हम लोग रिकैप करेंगे हम लोग लास्ट वीक हमने क्या देखा था। डज एनीबॉडी वुड लाइक टू स्टार्ट? हमने लास्ट वीक क्या देखा था? Hare Krishna, Prabhuji, I can do हरे it. कृष्णा। या So we did 2.56 to 2.59 last week. So here we are talking about, basically Lord Krishna is answering the questions that Arjuna had raised in the earlier verses about, what is या it to, what does it mean to be in Samadhi? So he says first, talks about a Sthitadir Muni, that is a sage of a steady mind. Who is he? Somebody who in sadness or in, or when he's happy, has, so when he's sad, has a equipoised mind. So when he's sad, he's not extremely agitated, and when he's happy, he's not extremely, or when some, profits or something comes in his business, he's not या extremely elated. Main या problem is करेक्ट। the mind. So we have to control the mind of, free it from attachment, fear, and anger. And you वेरी also गुड। explained what exactly, fear and anger mean. Fear actually comes when we can't control something, and वेरी गुड। anger या comes when we think we can control, but we are not able to control. एबल टू। या ओके। And you also made one point, which kind of registered in me quite deeply, that one of the acharyas has actually mentioned that in any situation, a true Muni is somebody who can look at a situation from या different angles, not just from his point of view, and then act after taking into account all the various dimensions. And then you also mentioned, about you gave examples for how you know from our Vedas, and even from Socrates. You mentioned Socrates, the Greek philosopher, as या well, where to show that like Prahlad Maharaj or Mirabai, they did not have fear, and how they were protected by the Lord. In 2.57, we spoke about one who's not affected by good or evil is one who's firmly fixed in perfect knowledge.
But the most important thing here is first we need to understand the knowledge and then we have to apply. Then in 2.58, you spoke about the third question that Arjuna raised, which was answered by the Lord. How does one control himself or be disciplined? Here, Prabhupada ji, Jai Srila Prabhupada had given an excellent example about a tortoise. How when the tortoise is going to be hit by something or if it fears something, what it does is immediately withdraws the five, its face and, the hands and the legs. So, and into its protective shell. So, that is the way that we have to withdraw all the senses, and this is how the senses will, our five senses will have to be controlled. In 2.59, a further explanation is given that just controlling the senses alone is not enough. Yeah. Because it can manifest in different ways, then in wrong ways, just as it happened to Yeah. Vishwamitra Muni. So the senses must be engaged in a higher taste, that is Krishna consciousness. And you also gave an example of Ramanujacharya and Dhanurdas, how the moment Dhanurdas got the taste for greater beauty, why would you go for something less? Hare Krishna, Prabhuji. Thank you very much, Mataji. Very nicely elaborated, very concise. Thank you very much. आशीष प्रभु, पूजा माता जी, आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं? I think one example which I recollect was the tortoise one, who can, control the senses, how, and that is how is very important for us to control our, senses. Yeah. And that can be controlled only when we divert our mind to the Krishna consciousness, otherwise it becomes very difficult. Yeah, correct. Thank you. पूजा माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है. हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, अब आ रही है. अच्छा, प्रभु जी, इतना ही, जितना बाजी माता जी ने जितना कवर किया उतना ही मुझे ध्यान है. इससे आगे मुझे अभी तो कुछ ध्यान आ नहीं रहा है, कुछ अलग. ओके. वैजी माता जी ने काफी अच्छा पूरा सारा सेशन उन्होंने अच्छा से ब्रीफ आउट कर दिया, तो थैंक यू. तो हम लोग शुरू करते हैं. आज का जो श्लोक है हमारा, जो श्लोका नंबर 60 है, उससे शुरू करते हैं हम लोग. तो मैं शेयर करता हूँ, 1 मिनट. ओके, तो आई विल चैंट द श्लोका. मैं बोलता हूँ, अगर किसी को रिपीट करना है तो मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं. यततो हि अपि कौन्तेय यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः. I'll repeat once more. यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः. इसका अनुवाद देखते हैं हम लोग. The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. तो ये बहुत ही एक अच्छा श्लोक है, और
इसमें भगवान कृष्ण ये उपदेश दे रहे हैं। ये मतलब देखते हैं कि बोलते हैं कि हमारी इंद्रियां इतनी स्ट्रांग है, इतनी बलशाली है कि पुरुषस्य विपश्चिता, जो एक बहुत ही लर्नड, बहुत ही जो क्या होता है ना, बहुत ही बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो फुल ऑफ विजडम, उसकी बुद्धि को भी जो है हमारी इंद्रियां जो है भटका सकती है, जो उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। कभी-कभी हम लोग देखते हैं, हम लोग ऐसा कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन समटाइम्स वी गेट, जैसे अभी न्यू ईयर गया तो लास्ट मतलब न्यू ईयर रेजोल्यूशन बहुत लोगों ने बनाया होगा। सो टुडे इज ऑलमोस्ट 7th, तो धीरे धीरे जो माइंड है, वो जो डेडिकेशन जो 31st को था, वो 7 दिनों में धीरे धीरे वो डाइल्यूट होता जा रहा है। एंड मे बी इन अनदर 1 वीक और 15 डेज पूरा होगा, एंड देन अगेन दैट विल गो बैक। बट यहाँ पे और बहुत से लोग हैं ऐसा, जो लोग कहते हैं कि या आई कैन कंट्रोल माय माइंड, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं चाहे तो ये आदत छोड़ सकता हूँ, मैं चाहे तो वो आदत छोड़ सकता हूँ, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। बट यहाँ पे हमारे एक वैष्णव कहते हैं कि ये दिस इज हिज लॉर्ड इज नॉट टॉकिंग ऑफ कॉमन मैन, इज नॉट टॉकिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन, बट इज टॉकिंग ऑफ पुरुषस्य विपश्चितः, who are very wise, who are very learned, and who are actual man of discrimination. They actually know what is right, what is wrong, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट स्टिल ऐसे व्यक्तियों का भी जो मन है वो भटक सकता है, अगर इंद्रियां जो हैं मतलब ये बताएगा कि कितनी स्ट्रांग है, कितनी प्रबल है। सो ये जो है इम्पोर्टेंस ऑफ मतलब हाउ स्ट्रांग इज सेंस इज शोन हियर। तो ये कहा गया है इसमें। और जो बड़े बड़े विद्वान ऋषि हैं, इतने जो बड़े बड़े मुनि लोग हैं, वो भी कभी कभी भटक जाते हैं। और हम लोग हमेशा लेते हैं एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल वाज विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि ही वाज डूइंग तपस्या फॉर 60,000 ईयर्स, 60,000 साल से तपस्या कर रहे थे, लेकिन एक जो था उनका कान, दैट वाज वेरी स्ट्रांग। जैसे वो पायल का छुन 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 सुना, ही गॉट डाइवर्टेड एंड इमीडिएटली जो होता है वो बह गए वो। सो एक भी इंद्रिय अगर हमारी जो है, मतलब हम लोग देखेंगे आगे भी वो आएगा कि अगर कंट्रोल में नहीं है तो हमको भटका सकती है। सो दिस इज व्हाट इज सेड हियर। एंड वैसे ही और एक ऋषि थे, उनका नाम मुझे बराबर से याद नहीं, आई थिंक इट वाज कंडू मुनि। और एक ऐसी एक अप्सरा उनको भटकाने के लिए आए, एंड ही गॉट कैरिड अवे, एंड ऑलमोस्ट मतलब 900 साल बीत गए, 900 years passed away, and that evening he said okay wait let me do संध्या, मैं संध्या करके आता हूँ। तो जोकिंगली she said आज ही अभी संध्या हो रही है क्या, इसके पहले हुई नहीं क्या? तो वो उनको एकदम स्टक कर गया ये बात, और immediately started thinking, he started contemplating। और जब उन्हें सोचा तब देखा कि बाप रे बाप, 900 साल गुजर गए मैं इसके साथ रह रहा हूँ, एंड आई एम वेस्टिंग माय टाइम। इमीडिएटली उन्हें छोड़ा एंड वो वहां से निकल गए। सो हमारी जो इंद्रियां हैं, सो वी नो क्या क्या इंद्रियां हैं, एनीबॉडी जस्ट टू रिकैप, व्हाट आर द सेंसेस, जस्ट टू नो व्हाट आर द थिंग्स, बिकॉज वी शुड नो व्हाट, क्या चीजें हैं जो मुझे भटका सकती हैं, तो वी शुड नो व्हाट आर द थिंग्स, दैट्स व्हाई। So sense To of size, eyes, ears, nose, nose, ears, taste, mouth, taste, yeah, Taste. tongue, Taste. yeah, skin, speech also, right? And yeah, skin, our त्वचा, touch. touch। So ये जो है, even one thing, we feel okay, I need some soft, smooth, warm touch, so we might get diverted. Or our ears, like Vishwamitra Muni, we might get diverted. Our eyes, if it hankering, then we might get diverted। हमारे मतलब कोई भी जो इंद्री है, एक भी हमारी इंद्री जो है हमको भटका सकती है। एंड our mind is most topmost of them। तो
भगवत गीता में देखें मनःषष्ठ्यानि इंद्रियाणि, मतलब भगवान मन को भी जो है इंद्रियों में गिनते हैं। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल दैट माइंड, बिकॉज माइंड अगर कंट्रोल में नहीं है तो एक्चुअली अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल से देखें तो इट इज जैसे हम लोग जा रहे हैं, वी आर वॉकिंग थ्रू सम मॉल और सम फूड कोर्ट, जा रहे हैं, सडनली हमने देखा कुछ सम वेरी डिलीशियस, सो इमिडिएटली जो आईज है वो मैसेज भेजती है देयर इज समथिंग डिलीशियस टू माइंड। और माइंड जो है वो फिर जो है जिह्वा को, मतलब जिह्वा जो है उसको रिमाइंड करता है कि आई हैव टेस्टेड दिस 6 months back and it was so lovely. So if you see, actually eyes have nothing to do with that object, or that tongue doesn't has to do. Actually the brain जो सेंटर है पूरा, वो सारा जो है माइंड है हमारा। बिकॉज आंखें तो जस्ट देखती हैं, लेकिन आंखें देखते ही वो मैसेज पहुंचाती है माइंड को। माइंड अगर कंट्रोल में है तो ही विल इमीडिएटली से नो स्टॉप, हमको इसके आगे नहीं जाना है। बट अगर माइंड कंट्रोल में नहीं है, ओ देन ही विल स्टार्ट, अरे यार कितना अच्छा आइटम था, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई शुड ईट दिस। एंड देन जैसी जिह्वा खाती है तो टंग विल स्टार्ट रिलीजिंग। हम लोग एड्स में देखते हैं वाओ वाओ, क्या क्या आवाज निकाल के खाते हैं। सो दिस इज ऑल हैज टू बी कंट्रोल्ड बाय माइंड. If our mind is not in control, then the senses are, you can say, the tools of that mind to enjoy. So the most important is mind, and then all this tools or the senses are there. So it's very important to control all of them. And then further हम लोग देखते हैं कि it's very difficult to control mind. It's not easy. And अर्जुन भी खुद कहते हैं कि मैं इस मन को कंट्रोल नहीं कर सकता. It's very difficult. चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म. And या भगवान भी कहते हैं, या इट्स करेक्ट. And 6th chapter में भगवान कहते हैं मनो दुर्निग्रहम चलम. It's very difficult to control. It's very restless. तो भगवान भी इस बात को जानते हैं. But our aim is to focus that mind on, instead of on sense enjoyment, और इंद्रिय तृप्ति के बदले उसको भगवान में हमको लगाना है. So that is our job. वो हमको करना है. तो that is the lesson we get from this shloka. And हम लोग अगला श्लोक देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा था लास्ट वीक में, खाली कंट्रोल नहीं करना है, उसको कंट्रोल करके एंगेज करना है. तो वेरी नाइस श्लोका इज दैट, श्लोका नंबर 61. विल टेक दैट. ओके, थैंक्स. तानि सर्वाणि संयम्य, तानि सर्वाणि संयम्य, युक्त आसीत मत्परः, युक्त आसीत् मत्परः, वशे हि यस्य इन्द्रियाणि, वशे हि यस्येन्द्रियाणि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. तानि सर्वाणि संयम्य, युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यस्य इन्द्रियाणि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. इसका ट्रांसलेशन देखते हैं. One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me, is known a man of steady intelligence. तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य, ये जो सब जो है सर्वाणि संयम्य, इसको संयम में करना है. एंड युक्त आसित मत्पर है, युक्त करना है इसे. कहाँ पे? मत्पर, मुझ में लगाना है. तो यहाँ पे भगवान भी क्या बोल रहे हैं? इट्स सेम थिंग. हमें न सिर्फ कंट्रोल करना है, इसको कंट्रोल करके हमको भगवान में लगाना है. एंड देन ही सेज वशे ही यस्य इंद्रियाणि. जब उसका माइंड जब फिक्स हो जाता है
तो ऐसे जो है वो व्यक्ति वश ही यस्य इंद्रिय, इंद्रियों को वश में रख के रखता है, एंड सच काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड अ मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको हम कहेंगे ये प्रज्ञा जो है, इसकी बुद्धि जो है वो प्रतिष्ठित है, इज फिक्स्ड। तो ये मैसेज हम लोग को भगवान इसमें दे रहे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हम लोग को ये चीज़ याद रखनी कि न सिर्फ अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करके हमें इसके एंगेज करना है भगवान में, तो ही हम लोग जो है अपना जो गोल है वो हम लोग उसको वहाँ तक पहुँच पाएंगे हम लोग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। तो ये मैसेज हम लोग को श्लोका नंबर 61 से मिलता है हम लोगों को, टू फिक्स आवर कॉन्शियसनेस अपॉन द लॉर्ड, मत परहा, ये हम लोगों को करना है। एंड या अगर नहीं करते हैं हम लोग माइंड को कंट्रोल, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है वो नेक्स्ट श्लोका में बताया गया है। तो इसी श्लोका नंबर 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। Translation: While contemplating the object of senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं सी मतलब हाउ इंटेलिजेंटली ही इज प्रेजेंटिंग द टॉपिक, कि अगर मतलब मन को कंट्रोल करना है फर्स्ट, देन मन को कंट्रोल करके भगवान में एंगेज करना है, ओके। और नहीं करते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर मैं नहीं करता तो क्या होगा, तो उसका आंसर यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। वी स्टार्ट कंटेम्पलेटिंग। जैसे वही हम लोग वो जो फूड कोर्ट वाला जो सीन है, वी रिकलेक्ट दैट, उसमें हम लोग जब उस चीज़ को देखते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है। इफ यू इमीडिएटली इग्नोर एंड वी कीप वॉकिंग डजंट मैटर, बट दैट माइंड ही स्टार्ट्स कंटेम्पलेटिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ओ इसका डिज़ाइन ऐसा था, इसका ये कलर था, इसका टेस्ट ऐसा था, एंड आई हैव ईटन दिस मेनी टाइम। सो ही स्टार्ट्स फोकसिंग ऑन दैट, starts keeping on thinking, यार ये है, ये है, ये है, ये है, ये। So that is where the problem starts. There is one very nice story I'd like to connect here. बहुत अच्छा स्टोरी है। एक बार दो साधु एक they were passing by a river, एक नदी से गुजर रहे थे, and they were sannyasis. So सडनली उनको एक लड़की की चीख सुनाई देती है, बचाओ 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 बचाओ। तो एक जो साधु है, जो वो देखता है अरे पानी में एक लड़की डूब रही, तो इमीडिएटली वो पानी में छलांग मार के उसको उठा के उसको लेके आते हैं, उसको वहाँ पे सुलाते हैं, उसको ओके करते हैं सब, उसको जो भी मतलब पानी वानी निकाल देते हैं जैसे ओके या ओके। जब वो लड़की ओके बोलती तो वो दोनों अपना साधु निकल पड़ते। तो ये जो दूसरा साधु था, he says, my God, what have you done? You are a sannyasi. You are not supposed to touch a woman. तुमने उसको हाथ लगाया उसको, और तुमको बचाने के लिए, you don't know where all you have touched her, and my God, you have such a big sin. So he kept on, hey, she was wet, this and that, all kind of nonsense he was talking. So
for almost for 5 kilometers they're walking, and this person, that other sadhu, was कंटिन्यूसली उनको वही बोले जा रहा है, यार तूने क्यों किया, तू साधु है, तुझे हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो देखा था तूने स्त्री को, उसको नहीं करना चाहिए था ऐसा, उसको हाथ नहीं लगाना. सो दैट साधु, द अदर साधु, ही सेड सिंपल थिंग, बोलते सी मैंने उसको बचा दिया, उसको तुरंत उसको निकाल के उसको वहां पे लेटा के मैं चला गया, मैंने उसको छोड़ दिया. बट पिछले 5 किलोमीटर से तो उसको अपने सर पे अपने उसको बोझा जो है उसका ढोते हुए तो हार. सो दैट टाइम ही रियलाइजेस, या ओके आई एम रॉन्ग करके, मतलब इसने तो खाली अपना काम, ही जस्ट डिड हिज जॉब, ही सेव्ड हर, उसको सुलाया एंड ही लेफ्ट. बट दिस अदर पर्सन, he kept on contemplating in that woman. So more than this sadhu who was touching her or who saved her, this other person who was thinking about that woman was more attached. So we can learn from this, you can say this example or this story that that focusing mind is how important. इसको कहाँ पे लगाना चाहिए? We can just do our job and leave it. It may be a very thing which you are not supposed to do, like a sannyasi is not supposed to touch it, वो करके उन्हें छोड़ दिया. But this other person, he kept on thinking about that woman for another 5 kilometers, which is wrong. So ये जो प्रॉब्लम है, ये सारा मन का प्रॉब्लम है. माइंड को हम लोगों को बहुत ही हम लोग को फोकस्ड रखना है और उसको कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, that we have to remember. And whenever there is such kind of situation, you start ध्यायतो विषयान पुंसा, you start ध्यान, उसका जब ध्यान करना शुरू करते हैं, अरे ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसा चीज है, ये ऐसा चीज है, तो वहां से फिर आगे सीढ़ी बनना शुरू हो जाती है. सो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते. संग जो है उससे अटैचमेंट जो है वो शुरू हो जाता है. When we start thinking, अरे iPhone 13 आया है नया मार्केट में, ओ सो नाइस, इसमें ये फीचर है, इसमें वो फीचर है, और ये करना है, उसमें वो करना है, तो ही स्टार्ट्स डेवलपिंग दैट अटैचमेंट. ओ मुझे ये ले, मतलब एकदम उसको अटैचमेंट, एकदम राग उत्पन्न हो जाता है, अरे कितना अच्छा होगा ये. फिर दुकान में जाके, मार्केट में जाके, मॉल में जाके उसको देखना शुरू करता है, वो बोले शॉपिंग नहीं करेगा, अच्छा इसमें क्या क्या फीचर है बताओ मुझे, बोला ये है, ये है, ये है, ओके. So slowly he starts getting attachment to that object, and the next thing comes is sangat sanjayate kamaha, and then he start developing a strong desire. ये मुझे चाहिए, I want this. तो ध्यान से संग और संग से काम, यानी it slowly it keeps gradually increasing. और फिर काम से क्या होता है, अगर वो काम पूरा नहीं होता है, वो कामना जो है हमारी, डिजायर जब फुलफिल नहीं होती, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोध जो है वो उत्पन्न हो जाता है. सो लॉर्ड कृष्णा इज गिविंग स्टेप्स हाउ स्लोली द माइंड इज गेटिंग फॉलन इनटू द पिट. कैसे मन जो है उसका पतन होता है, ये यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से भगवान इसका स्टेप बताते हैं यहाँ पर. और वी विल सी फर्दर स्टेप्स इन द नेक्स्ट श्लोका. भगवान इसके आगे के स्टेप्स भी बताते हैं इन श्लोका नंबर 63. बट बिफोर दैट विल टेक पर्पट्स. पर्पट में बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, जस्ट वांट यू टू फोकस ऑन दैट. इफ यू सी दिस वन हु इज नॉट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सब्जेक्टेड टू मटेरियल डिजायर्स. तो ऑब्वियसली जो कृष्ण भक्ति में नहीं है, ये कृष्ण चेतना में नहीं है, तो उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं रहेंगी. एंड हमारी जो इंद्रियां हैं, इट कैनॉट रिमेन लाइक दैट नॉटी बॉय, वो चुप नहीं रह सकती, उसको कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए. सो अगर मन कृष्ण भक्ति में है तो हम सेंसेस को हम लोग कृष्ण सेवा में लगाते हैं. अगर वो भौतिक चीजों में है तो फिर उसको इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं. सो दिस इज वेरी नाइस पॉइंट व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग हियर. और फिर यहाँ पे ये कहते हैं कि ये इतने बलशाली हैं, जैसे हम देखा कि in the material world everyone including Lord Shiva and Brahma, to say nothing for other demigods in heavenly planets, is subjected to the influence of sense object. तो मतलब दूसरे छोटे मोटे देवी देवताओं को तो छोड़ ही दो, इवन ब्रह्मा एंड शिव जी जो हैं वो भी जो हैं सब्जेक्टेड टू इन्फ्लुएंस, वो भी मतलब प्रभावित होते हैं.
तो हम लोग देखते हैं ब्रह्मा जी भी जो थे वो अपनी पुत्री की तरफ आकर्षित हो गए थे और शिव जी उनको फिर मारने के लिए दौड़े थे। तो शिव जी भी हैं, मतलब ऐसा इवन ये इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, दे आर टॉप, लोग बोले इस मटेरियल वर्ल्ड के, इस भौतिक जगत के सबसे टॉप मोस्ट लोग हैं। तो ये लोग भी जब प्रभावित होते तो हम लोग क्या हैं? देवी देवता को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं लिव अवर अदर डेमिगॉड्स, सो हु आर वी आर नथिंग। सो कितना केयरफुल हम लोगों को रहना चाहिए, हाउ मच कंट्रोल्ड वी शुड बी टू प्रोग्रेस इन कृष्ण भक्ति। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे हम लोगों को इस श्लोक से लेना है। एंड अदर थिंग वाज व्हाट आई वांटेड टू से, या दैट्स इट। तो हम लोग इसका अगला स्टेप देखते हैं, हम लोग श्लोका नंबर 63 में देखते हैं हम लोग। श्लोका नंबर 63, क्रोधाद् भवति सम्मोहः क्रोधा भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। We'll see translation. From anger, complete delusion arises. From delusion, bewilderment of memory. And memory is bewildered, intelligence is lost. And when intelligence is lost, one falls down again to the material pool. बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो हमने देखा कि जो पिछले श्लोक में भगवान कहते क्रोध आता है, तो जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। बट इज इट, माई क्वेश्चन इज आप लोगों को, क्या कामनाएं हमारी पूरी नहीं होती तो ही क्रोध आता है, या कामनाएं पूरी होती है तो भी क्रोध आता है? Hare Krishna, Prabhuji. यस So मतलब if it is not satisfied, then possibly it can result in anger. But I think if it is satisfied, it results in greed because we go for the next one, right? yes, and that greed further elevates the problem, because Right. today he is hankering for we take example of Ravana. Ravana was such a lusty person, मतलब वो अपने बहू बेटियों को भी नहीं छोड़ता था, it was such a nuisance ऐसा. So that keep on elevating problem, and then if it did, मतलब वो आदमी को जब नहीं मिलता है तो he gets more and more angrier, and we see उसका examples हम लोग देखते हैं. So this is a big problem. And क्रोध, मतलब हम लोग क्रोध तक देखा, जब क्रोध से क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, जब क्रोध हो जाता है तो he is bewildered, a delusion arises, so he is not able to think properly. When हम लोग देखते हैं जब आदमी को गुस्सा आता है तो he is not able to think properly, और उसका बहुत अच्छा उदाहरण है हम लोग देखते हैं, what was his name, I think दंतवक्र. So दंतवक्र, when he heard that I think it was Shishupal was killed, he got so angry, he started running towards Krishna, that I will go and kill him. वो अपना रथ पे बैठ गया, निकल गया, but he forgot कि I am going to kill him, I have to fight him. तो वो अपना तलवार भी नहीं लिया, धनुष नहीं लिया, बाण नहीं लिया, कुछ नहीं. So उसको बोलते हैं क्रोधांध. In the क्रोध he became blind, क्रोधांध हो गया, and he is not able to मतलब मुझे गुस्सा तो आ रहा है, बट गुस्से में मुझे करना क्या है, बुद्धि पूरा नाश हो गया उसका. कि ओके, आई हैव टू फाइट हिम, सी ओके आई नीड मिलिट्री पावर,
आई नीड बेस्ट जनरल्स, आई नीड गुड वेपन्स, मुझे फॉर्मेशन क्या बनाना है, वो सब प्लानिंग करके जाना चाहिए था. But he got so angry that he just अपना उठ के निकल गया. So and हम लोग के साथ भी कभी कभी होता है, हम लोग देखते हैं, we see many cases also, हम लोग देखते हैं कि गुस्से में आके उसने मार दिया उसको, and then he is repenting कि वो सॉरी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. बट एक बार जो हो गया सो हो गया, इट कैन नॉट बी रिट्रीव्ड. मतलब बुलेट से गोली निकल गई तो निकल गई. सो दैट इज द मोमेंट, दैट एंगर. वो बोलते हैं ना, देयर इज ओनली वन डिफरेंस ऑफ डी बिटवीन एंगर एंड डेंजर. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर एंग्री, एंड दिस इज वेयर द माइंड हैज टू बी कंट्रोल. जैसे हम लोग को देख रहे थे टॉर्टोइस वाला एग्जाम, व्हेन देयर इज एंगर, इमीडिएटली पुल इन आवर माइंड, immediately start thinking about that whatever is going on, and then you will see your mind will start मतलब खींचेगा बार बार उस गुस्से से, लेकिन but you start thinking of, stop thinking of that whatever episode or whatever has happened, then your mind will be peaceful. If not, it becomes more and more, मतलब जो है वो और भी जो है उसका बुद्धि जो है नाश होते जाता है. तो दिस इज नेक्स्ट स्टेप. क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहन में पड़ जाता है वो. सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और सम्मोहन जब होता है तो स्मृति जो है उसका विभ्रम हो जाता है. मतलब उसकी जो क्या बोलते हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड, मेमोरी, या स्मृति जो है उसकी पूरी चली जाती है कि मुझे क्या क्या था. मतलब जैसे गुस्सा आ गया तो ही विल फॉरगेट ये मेमोरी विद दैट पर्सन, that I used to love so much that person, yeah, I used to have so much affection for this person. In that anger he forgets and everything, and he commits some kind of nonsense. So bewilderment of memory, and ये जब होता है स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, जब when the memory is bewildered, intelligence is lost, बुद्धि का नाश हो जाता है, and he is intelligence is totally taken away. मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, and there is so much of like I had affection for this person or that object or whatever. गुस्से में कोई अपना पसंदीदा चीज उठा के फेंक देते हैं कांच का, and then he starts lamenting, अरे ये मैंने क्यों फोड़ दिया. But what is done is done. So intelligence is lost, and when intelligence is lost, when you lose your intelligence, बुद्धि ही जब नाश हो जाए तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, हमारा फॉल डाउन हो जाता है. So यहाँ पे प्रभुपाद मेक्स इट क्लियर कि when the intelligence is lost, one fall down again into the material pool. तो हम लोग फिर से ये भौतिक जगत के हम लोग चक्कर में फंस जाते हैं. सो इन दैट सेंस पूरा भगवान कृष्ण जो है हम लोगों को स्टेप्स दे रहे हैं कि कहाँ से शुरू होता है. ध्यान से हम लोग ध्यान करना शुरू करते हैं. ध्यान से फिर हम लोग को अटैचमेंट हो जाता है. अटैचमेंट से हम लोगों को कामना जाग जाती है उसके प्रति, आई वांट दैट. फिर उससे फिर क्रोध आना शुरू हो जाता है, और क्रोध से हम लोग बिविल्डर्ड हो जाते हैं. बिविल्डर्ड से हमारी मेमोरी चली जाती है. मेमोरी से बुद्धि का नाश होता है. बुद्धि नाश हो गया तो बस खत्म. दैट्स द बेस्ट पार्ट, कि बुद्धि का नाश हो गया तो देन देयर इज नथिंग टू बी डन. सो इसीलिए हमने वो टॉर्टोइस वाला एग्जांपल में देखा था कि और बुद्धि हैज टू बी वेरी वेरी हार्ड, वेरी टफ. इट हैज टू बी लाइक ना उस दैट शेल ऑफ द टॉर्टोइस. वो अगर ऐसा बुद्धि है हमारे पास तो ही हम लोग तुरंत अपनी इंद्रियों को हम लोग खींच पाएंगे, और वी विल बी एबल टू रिट्रैक्ट फ्रॉम सच काइंड ऑफ सिचुएशन. सो दिस इज अनदर मैसेज what we are getting from this shloka, that we have to be very careful. और परपट में भी बहुत अच्छे पॉइंट हैं जिस पॉइंट से यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं. रूप गोस्वामी जी का जो भक्ति रसामृत सिंधु है उसका एक श्लोक कोट करते हैं. प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधे वस्तुना मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते, विच मीन्स कि Oh, I'm not able to open that right now. Okay, no problem. ठीक है. तो
हरि संबंधी वस्तु न जो भी है वस्तु है हमारे पास, मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। हमको हर चीज जो है वो अगर हम भगवान की सेवा में नहीं यूज कर पा रहे हैं, वी आर ओनिंग एंड वी आर सेइंग ओके मुमुक्षु मतलब मुझे इससे मतलब हम लोग है ना रेनिशिएट की तरह हम लोग रह रहे हैं हम लोग, बट वी आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू दैट ऑब्जेक्ट, देन वैराग्यम फल्गु, इट्स अ फल्गु वैराग्य, तो वो नहीं होना है। तो ये कब होगा? ओनली बाय डेवलपमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब हम लोग कृष्ण भावनामृत होते हैं तो हम लोग धीरे धीरे फिर जो है अपने मन को हम लोग सही रास्ते पे ले जा सकते हैं, एंड इसको फल्गु वैराग्य जो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इससे हम लोग बच सकते हैं। तो या दिस इज द मैसेज व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस श्लोका। Okay, so I think school 20th I will stop here, and if there is any question और any कुछ टीका टिप्पणी है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji. Excellent points and excellent session. So practically one thing that I've started doing, so for that I have to give a little bit of a history. So being a lawyer, we always plan, ahead and think of the worst case scenario. So what happens is automatically it comes into, the normal family life as well, not just the profession. So my husband always used to call me analysis paralysis. Who's asking you to analyze so much in every situation? No, but I learned something very valuable, particularly connecting, it with Bhagavad Gita since I started, going into Bhagavad Gita. The moment, and slowly, it's not like it's happening in every situation, but there are times when I've started reacting differently. In the sense, I don't react right away. Very important point about this contemplation, because only when we start analyzing or talking about things, it becomes a problem. So I stop my thoughts right away, even if it leads to anger, and start chanting. The moment I take my beads, or even if I don't have my beads, if I start chanting, it takes my mind away, and slowly I keep pushing it. And then in a rational, sane mind, I'm able to think and approach. And I'm glad, in certain situations, at least I do that, rather than regretting it. Hare Krishna Prabhu. Very good, Mataji. Wonderful. This is what has to be done. And this is what I call as the tortoise philosophy. Immediately we are using our intelligence. No. However angry we are, or whatever the situation, immediately we will pull away from that. And only that is going to help. अगर हम लोग react करते हैं immediately, then that is going to even worsen the situation. And that's why we see nowadays that Shraddha and that Aftab cases, they were living almost for 3 years or 5 years, I don't know, something like that. And my God, what he did, 35 pieces, so inhuman, like कितना क्रूर काम है ये। मतलब जिसके even if we leave a dog, हम लोग कुत्ते के साथ हैं तो we have so much affection for that, but he's living for 3 years or 5 years and suddenly he's into pieces, 35 pieces. My God. So that is, I think even he must be regretting, because he had done in the spur of a moment. गुस्सा आ गया, immediately react किया, and now he must be regretting because he's getting punishment and all that. So that is very, very important. Immediately pull back like a tortoise. So इसके लिए जो भगवान ने जो example दिया tortoise, is super. Really, we can correlate our situations. So thank you, Mata. Very nice realization. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Mata. Ashish Prabhu, Puja Mata ji. No questions, नहीं Prabhuji. प्रभु जी, मैंने तो आपको क्वेश्चन पूछ दिया था। Yeah.
sorted. या आशीष प्रभु कभी कभी ऐसा मतलब प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं, इट्स वेरी नाइस। एंड वो ऐसा नहीं है कि क्लास का वेट करते, जब भी याद आता है तो वो एक मैसेज भेज देते, तो वो दिस इज द क्वेश्चन। सो एंड हिज क्वेश्चंस आर वेरी प्रैक्टिकल, so I like him. He's very मतलब प्रैक्टिकली हम लोग मतलब भगवत गीता को कैसे हम लोग अप्लाई करें, so it's very nice है। हम लोग खाली मतलब फिलोसफी सीखना नहीं है, बट we have to apply also, we have to try to apply, so we can live a better life like a human being, जैसे हम लोग बनना चाहते हैं मतलब। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू। और अगले सैटरडे हम लोग मिलते हैं, आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट Prabhuji, sorry, सैटरडे can में। I? या माताजी टेल मी। या No, just a request to Ashish Prabhuji to post the questions in the group so that we can also learn from that. Because sometimes it's these questions which also make us think, and we get just a request, because if it's personal you don't have to, but if you feel that it can benefit all of us, then just a humble request from my side. And second, Prabhuji, regarding the quiz. I attempted the quiz, but okay, if you can, share your thoughts on that. Thank you. Yeah, I was about to come to that. I think you, Pooja Mataji, Ashish Prabhu, and Hema Mataji, only few have out of. Actually, I'm seriously thinking. What I was thinking was like our group is of almost 30 people, but hardly Kunjeshwari is my wife, so I'm not counting her. So Pooja Mataji, Ashish Prabhu, you, and sometimes Anushka join. Only 3 or 4 people are there. So I was really thinking that maybe I could absorb you in my some other class, and do like we can continue our Bhagavad Gita class here and something like that, because others I think are not interested, not even for once they are coming. So even quiz nobody has attempted except you 4 people. So that was thought in my mind. Maybe I will post a poll, something, if they are interested, or they sincerely need some change in times or day. Yeah, My Prabhuji. opinion प्रभु जी है कि अगर आपका और कोई क्लास हो रहा है तो उसमें आप हमको मर्ज कर दे, तो आपका भी 1 घंटा बच जाएगा। या और ये सैटरडे जो है प्राइम तो टाइम है गुड एकदम। आपका एक टाइम भी हम उसमें ऐड हो सकते हैं अगर इसी वीकेंड ऐसा कुछ टाइम पे हो रहा है, तो अगर एवरीवन इज ओके विद इट, बट आई डोंट वांट टू मिस। तो अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंटिन्यू। अगर हम 3 जन 4 जन है तो भी एटलीस्ट हमें वो चाहिए या नहीं मतलब नॉट सेइंग आप Life लोग जो line, है 4 लोग, Prabhuji. या नहीं हम लोग आप लोग 4 लोग हैं, ये तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, विल कंटिन्यू दैट। But I was thinking sincerely on how to pull others also. If you have some friends in the group, you can maybe try to sincerely request them, or try to know what is the problem, why they are not coming. Like there is one चार्मी और उनसे मैंने बात की तो काफी लोगों को सैटरडे वर्किंग होता है प्रभु जी, तो इसीलिए वो ऑफिस में रहते हैं, तो इसीलिए उनका they are not able to attend. I'm not sure about others, but मैं चार्मी के थ्रू आया था, तो चार्मी से मेरी बात हुई थी कि why she is not able. Okay. So what I was thinking, like जैसा एक मेरा वर्किंग डे पे क्लास होता है मराठी, ऑलमोस्ट 17-18 लोग रहते हैं, उनका भी यही चीज है कि दे आर वर्किंग, या तो हाउस वाइफ भी हैं, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू जॉइन एट ए पर्टिकुलर टाइम, सो दे प्रिफर इन द इवनिंग्स। तो इफ इट इज ओके विद यू ऑल, आप सबके साथ हैं, तो हम लोग ऐसे किसी एक वीकडेज में या सैटरडेज या संडेज को या ऐसा मतलब व्हाटएवर कन्वीनियंट टाइम, वी कैन हैव दिस क्लास, वी कैन शिफ्ट एटलीस्ट 2-4 लोग भी और ज्यादा आते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग समथिंग स्पिरिचुअल बहुत अच्छा जो है। तो इफ इट इज गोइंग हमारे यू जो है, आई एम हैप्पी बिकॉज नॉट ओनली यू 3 people, बट ये जब यूट्यूब पे जाता है तो यूट्यूब में ऑलमोस्ट देयर आर
30-40 मिनिमम 40-50 व्यूज रहते हैं इसके, सो पीपल आर वाचिंग इट, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट कि पीपल आर वाचिंग, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन ये ग्रुप में और भी लोग अगर आ सकते हैं। सो मैंने लास्ट वीक कॉल किया था विशाखा माता जी को, बट शी वॉज बिजी, कुछ मतलब कोई गेस्ट आया हुआ था तो बात नहीं हो पाई, बट आई विल स्पीक टू हर एंड मे बी आई विल ट्राई टू पोस्ट अ पोल कि people who are seriously interested, those who are not interested, or who are interested in but cannot join at a particular time, तो their suggestions ऐसा तो मैं वो डालता हूँ जल्दी, मैं भी by 2-3 दिन में डालता हूँ मैं, बट इट इज ओके विद यू ना अगर हम लोग टाइम चेंज करते हैं? जी मुझे वीकडे माय वर्किंग आवर्स आर वेरी ऑड, माय ऑफिस गेट्स ओवर एट 11 PM इन द नाइट, ओह हाँ बताया था आपने, करेक्ट। वेरी डिफिकल्ट, बट वीकेंड्स में आई विल एडजस्ट प्रभु जी, मैं ओके, कोई भी टाइम पे एडजस्ट कर लूंगा। वीकेंड्स में कब प्रभु जी, यानी कोई भी टाइम चल जाएगा या इज देयर हाँ वीकेंड में प्रभु जी आई विल एडजस्ट, वॉट एवर कन्वीनियंट टू यू, आप मुझे कहीं भी एडजस्ट कर लो, मैं कर लूंगा, बट वीकडेज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है प्रभु। ओके चलो ठीक है, तो वीकडेज हम लोग स्किप करते हैं आइडिया। हाउ अबाउट पूजा माता जी, वेजी माता जी? प्रभु जी मैं तो दोनों में कंफर्टेबल हूँ, वीकडेज में भी और वीकेंड्स पे भी। वेरी गुड, चलो ठीक है, चलो आप मतलब आपका कोई इश्यू नहीं है टाइमिंग का, तो या वेजी माता जी हाउ अबाउट यू? Prabhuji, evenings and the weekends will work. But it depends because I have work and then my work is also pretty, I mean, although it's flexible, but during the day will be difficult during the weekdays. Weekend mein koi bhi time is fine. Weekdays mein I would prefer in the evenings, probably after 6 o'clock or something, not before that, Prabhuji. That would I be think my... yeah, okay, anyway Ashish Prabhu is not Right, like weekdays mein is not... yeah, he's not comfortable, so we'll have it in weekends. Only thing is now we'll discuss on timings on that. I'll just put that on that group also and see, also speak to Vishaka Mataji. So that is one thing. And how did you feel the quiz? How was the quiz? Did you enjoy it? बाल बाल पास Yes. 50% पासिंग आया हूँ। हाँ नहीं मतलब पासिंग इज नॉट द पॉइंट एक्चुअली, वो तो मतलब मैंने कुछ सेट भी नहीं किया, वो तो स्टैंडर्ड उसका होता है, बट माय पॉइंट इज कि हम लोग जब ये सब अटेम्प्ट करते हैं एंड मैं इसको थोड़ा सा आई मेक इट लिटिल ट्रिकी, सो यू आर एबल टू grasp the points properly. Question was very tricky, Prabhuji. First आप ऐसा question was बोलो लिटिल tricky. वो एक्चुअली प्रभु जी वो आंसर्स तो माइंड में थे, लेकिन वो टिक करते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से वो हमारे सीए एग्जाम्स के पेपर भी इतने टफ नहीं होते प्रभु जी जितने आपने पेपर नहीं ये थोड़ा सा Prabhuji, can we discuss the answers also sometime, because that would be very helpful. Actually that was my idea actually. I thought कि मतलब अभी खाली 4 लोगों ने दिया, I thought at least another 3-4 if people attempt, I will just wait for 3-4 days and then maybe one day we can maybe next अटेंड करके हमारी ऐसी हालत हुई तो सोचो जिन्होंने अटेंड नहीं किया तो उनकी क्या होगी। नहीं एक्चुअली मतलब इसका सारा पॉइंट ये है कि उस क्वेश्चन से हमारा जो आंसर है रजिस्टर दिमाग में रजिस्टर हो जाता है उसका आंसर, एंड स्टिक्स फॉर अस फॉर लाइफ टाइम। मे बी अगर हम लोग ऐसा सेशंस अटेंड करते हैं मे बी हम लोगों को कुछ टाइम तक याद रहेगा, बट ऐसा जब क्वेश्चन पेपर्स और क्विज फन क्विज जैसा हम लोग अटेंड करते हैं तो देन इट बिकम्स फॉर ए लॉन्गर टाइम। सो दैट इज द आइडिया। बस यही है कि हमने जो पूरा कवर किया है टॉपिक उसका रिवीजन हो जाए, रिवीजन होके देन दैट प्रॉपर थिंग स्टिक्स इनटू आवर माइंड, सो दैट इज द ओनली आइडिया, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट दैट वे। गुड, अच्छा है, आप लोगों को अच्छा लगा, एंड मे बी हम लोग वेट करते हैं 1-2 दिन एंड देन हम लोग इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे व्हाई, क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये आंसर है तो क्यों है, maybe you must be having some other viewpoint, so all these things can be taken into that session। हम लोग ऐसा स्पेशली एक क्विज का सेशन रखेंगे हम लोग, ठीक है प्रभु जी
सिर्फ एक क्वेश्चन था कुछ से रिलेटेड कि वो इस सूर्यपुत्र, मेरे को उसका नाम नहीं पता एक्चुअली, इस वजह से वो कंफ्यूजन में मैंने गलत किया। हाँ, दैट्स ओके माता जी। वही मतलब इससे क्या होगा देखो ना, क्योंकि वो नाम भी कनेक्ट हो जाता है हमको कि नाम क्या था उसका, कौन उनका शिष्य था, कब उनको सुनाई थी। हम लोग एक्चुअली हम लोग पहुंचे नहीं वहां पे, हम लोग 4th चैप्टर में जब जाएंगे हम लोग, ये एक्चुअली हम लोग ने जब इंट्रोडक्शन किया था ना उसमें कवर किया था हम लोगों ने, लेकिन 4th चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे पूरा डिटेल में आएगा पूरा वो इंट्रोडक्शन आउट में ऑफ वहां पे। सॉरी प्रभु, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था मतलब। नहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं, इंट्रोडक्शन जो था हमने किया था ना इंट्रोडक्शन, उसमें ये कवर किया था हम लोगों ने। आउट ऑफ पर सिलेबस नहीं जो मुझे पूछूंगा। ध्यान है, मुझे याद था कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नारद मुनि जी को सुनाया था गीता, क्योंकि उनको ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया था उस समय। हाँ, मतलब क्वेश्चन ये था कि भगवान कृष्ण ने पहले किसको दिया था, तो वो सूर्य देव को दिया था उन्होंने, मतलब कई हजार वर्ष पहले दिया था। भगवान बोलते हैं 4थे अध्याय में विवस्वान जो है मैंने ये उसको ज्ञान दिया था। व्हाट इज दैट श्लोका, मेरे को याद नहीं आ रहा है बराबर। 4.1 उसमें है। विवस्वान् मनुवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। I think that's the sloka. that is in between, but it is starting from what is that एवं shloka? परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम एवं इमं परंपरा राजर्षि इमं राजर्षि विदुः। No, that one Oh I no, will tell not you. that sloka. No, not that sloka. No, I'm also what you said, even that click my Vivaswan Manve Prabhu. What is before that? Imam vivasvate yogam. Imam That's the Vivasvati one. Yogam. Yeah. Imam Vivasvati Yogam. This योग I have told first to Vivaswan, और ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के टाइम पे हम लोगों ने इसको जस्ट ब्रीफली कवर किया था कि तब हमारा परंपरा क्या है, वो सब इसके ऊपर चर्चा किया था। सो तो यही है कि मतलब आइडिया हम लोग को जो सारा फिलोसफी हम लोग अच्छे तरह से समझ जाए हम लोग। तो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, एंड विल हैव वन स्पेशल सेशन ऑन दिस, हम लोग करते हैं वो। ठीक है, तो अभी हम लोग रुकते हैं एंड वी विल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट आई वोंट बी देयर, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। सो नेक्स्ट सैटरडे आई विल बी देयर। एक उसका नेक्स्ट सैटरडे हम लोग मिस करेंगे और उसके बाद में हम लोग मिलेंगे फिर। ठीक है, एंड आई विल कीप पोस्टेड अबाउट द क्विज वाला सेशन कैसा है क्या है। ओके, थैंक यू वेरी मच रजी माता जी, आशीष प्रभु जी, पूजा माता जी। हरे कृष्णा। वंशा हरे कृष्ण प्रभु। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू आशीष जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.